at the year end, and in a class 9th there are 4 chapters in chemistry. So here I will give you the quick recap of unit 3, that is the atom and the molecules. So what is this and what are the main topics we have to be read, and so that we must have a basics concept clear. So while we will reach in a class, especially in 11th and 12th, if we are opting the chemistry, then all the concept must be clear. So the unit 3, unit 3rd of class 9th, that is atom and molecules. Atom and molecules. So atom, the first thing is that what is the atom? Atom smallest unit किसकी? As we are having 118 element in the periodic table, modern periodic table. So जो elements है उनकी जो basic unit from which they are made up of is atom. So atom is the smallest unit of an element. And how it is different from the molecule, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एटम एंड मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स either of same element. For example, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल O2, ये डाई एटॉमिक है, जो दोनों एटम है वो सेम ही एलिमेंट की है. एंड इफ वी आर राइटिंग HCl, यहाँ पे दो एटम है, वन इज फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन फ्रॉम द क्लोरीन. सो अलग हो गए. सो यहाँ पे ये जो है इट इज ऑफ सेम, for example, and maybe of different element, अलग की भी हो सकती है elements. To here the example is, then in this chapter we are having the two laws. The first law is law of conservation of energy or law of conservation of mass. So first law is law of conservation of mass, that states that mass can neither be created nor can be destroyed. कभी भी हम मास को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट mass cannot be created nor can be destroyed. मास कभी भी ना तो बनाया जा सकता है ना वो खत्म किया जा सकता है. इट इज ओनली गेट अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर. सेकेंड लॉ जो हमने यहाँ पे पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट proportion. Definite proportion. And this law is also known as law of Proust, and it is also known as law of constant or the constant proportion. So how we will write this? यहाँ पे जो इसकी और it can be known as Proust's law, इसका एक और नाम है प्रूस्ट लॉ, या फिर इसे हम कह सकते हैं और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. So the two laws we have to be get clear in this chapter. And law of definite proportion states that the
compounds or chemical compounds are made up of elements by जो भी एलिमेंट से बने हुए हैं having a fixed ratio by mass. So how we will write it? It states that chemical compounds, because हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड्स कैसे होंगे? केमिकल. The chemical compounds are made up of elements by or in the fixed ratio by mass. So these two laws जो हमें एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ना है, then we have to be know about the chemical symbols, how we can represent the elements. I just said कि there are 118 elements in a periodic table. Up to class 9th we must know up the first 20 elements with their symbols. तो symbol क्या होते हैं, how the element can be written in the smallest form. For example, हमारा जो पहला एलिमेंट है that is the हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का जो सिंबल है that is H. सेकेंड एलिमेंट जो है that is the हीलियम और सिंबल है He. Then third element is lithium, symbol is Li. Fourth element is beryllium, and when you will do the practice you will be very clear about it. And यहाँ पे जो element है as I'm writing in a serial numbers, but जो elements है they are provided with the atomic numbers. atomic number जो होता है वो element के base पे लिखा जाता है, और atomic mass किसी भी element को as while we are going in a school we are having a ID card with us. That ID card is providing all the information about us. Same, a symbol is the ID of that element which is providing its atomic number and its atomic mass. So the element is having atomic number at the base, atomic number यहाँ लिखा जाएगा, and at the top it is provided with the atomic mass. So for example जो हाइड्रोजन है इसका atomic number 1 है. So as I am writing the serial numbers, these are the atomic numbers. हम ऐसे भी लिख सकते हैं serial number की जगह पे हम इनका atomic number लिख लेते हैं. तो यहाँ पे ये atomic number है. atomic number को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसका atomic number 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है एंड बेरिलियम का 4 है. एंड देन वी आर हैविंग बोरोन. तो ये जो एलिमेंट है ये जो इनके एटॉमिक नंबर है ये कहाँ लिखे जाएंगे? बेस पे. तो हाइड्रोजन इस तरह से लिखा जाएगा. जो मास होता है इट इज ऑलमोस्ट इज डबल और मोर देन डबल, बिकॉज जो मास है जिस भी एलिमेंट का आप सिंबल लिख रहे हैं मास उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से डबल होगा. तो हम जो मास है वो हम यहाँ ऊपर टॉप पे लिखते हैं. आपको किसी भी मास के लिए कोई भी रट्टा या मग करने की मीन्स यू डोंट वांट टू बी गेट अ रट्टाफिकेशन फॉर दैट. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी गेट द आइडियाज कि हाउ वी हैव टू बी राइट द सिंबल एंड एटॉमिक नंबर एंड देन एटॉमिक मास. एंड देन फॉर बोरॉन वी आर हैविंग B एंड सिक्स्थ एलिमेंट कार्बन, एंड कार्बन का जो सिंबल है दैट इज C. सेवेंथ एलिमेंट वी आर हैविंग द नाइट्रोजन. ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक नंबर लिखी है तो हम यहाँ सभी के साथ लिख देते हैं. हीलियम के साथ 2, लिथियम के साथ 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 एंड एट्थ एलिमेंट जो है दैट इज ऑक्सीजन. सिंबल नाइट्रोजन का सिंबल जो है N है और 7 ऑक्सीजन का सिंबल O है एंड दैट इज 8. जब कभी भी हम सिंबल लिखें अगर किसी एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक ही लेटर से लिखा जाता है तो वो लेटर कैपिटल होना चाहिए. कभी भी सिंबल लिखते वक्त हम रनिंग लेटर्स नहीं लिखेंगे. देयर मस्ट बी अ लिटिल स्पेस, दोनों के बीच में जोड़ के नहीं लिखना है. द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देन सेकेंड लेटर शुड बी इन अ लोअर केस. तो यहाँ पे देन हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज द
द नेक्स्ट एलिमेंट जो नाइन्थ एलिमेंट है दैट इज द फ्लावरिंग हैविंग सिंबल एफ एंड एटॉमिक नंबर यहाँ लिख दिया जाएगा 10 पे नियॉन एंड यहाँ पे Ne एंड 10। तो इस तरह से ये जो मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स लिखे हैं सिंबल के साथ, हमने पहला एलिमेंट कैपिटल लिखा है और अगर कहीं उसमें दो एलिमेंट का यूज हो रहा है, दो लेटर का, सॉरी अगर दो लेटर का यूज हो रहा है तो हम दूसरा लेटर जो है वो लोअर केस में लिख रहे हैं। देन इसके बाद अब ये जो कोई भी एलिमेंट है उसका जब हम सिंबल लिखते हैं, सिंबल क्यों लिखते हैं, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी हैव टू बी राइट द केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त हम किस तरह से लिखेंगे, अगर हमें कोई केमिकल फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन के लिए हम सिंबल सी लिख लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और डाइऑक्साइड ऑक्साइड है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेंगे। अब हमें इनके ऊपर कितना चार्ज होता है ये पता होना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। हम यहाँ पे बोर एंड बरी मॉडल देखते हैं, इसमें जो कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट में जो एटम होता है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके अंदर किसी भी एटम में बोर एंड बरी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार शेल के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहले वाली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर 18 होने चाहिए और फिर 32 होने चाहिए। इसे फिल करने के लिए हम एक यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं दैट इज 2n²। और यहाँ पे जो n है, n यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू दी नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल है उसकी बात कर रहे हैं। k के लिए मतलब होता है 1, l के लिए 2, m के लिए 3 एंड n के लिए 4। इस फॉर्मूले का यूज करके किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हम पता कर सकते हैं। जब तक फर्स्ट शेल फुली भर ना जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए, वी कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट। और जब एल शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए उसके तब तक हम अगली शेल में मूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब इसके पास जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, दैट इज 2 पहले वाली शेल में, और दूसरी वाली शेल में इसके पास 6 है, 2 आपने ले लिए, कितने बच गए 4। जब भी हम किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखे जाते हैं। पहले हम किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त सिंबल लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज, उसके ऊपर कितना चार्ज है ये लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज जो है यहाँ 4, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 2 क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे अब 8 में से 2 चले गए तो 6 रह गए। अब वहां हम 6 नहीं लिखेंगे, या इसको कंप्लीट अगर तो 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो उतना ही हम उसका चार्ज रखते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 है तो हम 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके चार्ज निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 में से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज। और यहाँ पे हम क्योंकि इसको 2 चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही उसका हम चार्ज मानते हैं। लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7, 8 तो हम 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करके चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 8, इसलिए हम 8 में से माइनस करते हैं, यहाँ पे 2 आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट C2 एंड O4, 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगे एंड हियर वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हैं, और भी हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे उनका भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
क्लोराइड का। अब इसके लिए आपको हाइड्रोजन तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम सिंबल इस तरह से लिख लेंगे। इसके पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो एक ही यहाँ पे जाएगा। मैंने अभी कहा कि अगर किसी के लास्ट वाला जो शेल है, जो भी लास्ट शेल किसी की होगी, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 2 3 4 है तो वही उसका चार्ज है। तो हाइड्रोजन का सिंबल और इसका चार्ज। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? CN। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। इसके लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो किस तरह से हो जाएगा? दैट इज 2 8 और अब कितना बच गया? 10 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। एक अभी मैंने कहा कि अगर 5 6 7 8 है तो हम 8 में से माइनस करेंगे, और अगर हम 8 को 7 को 8 में से माइनस करते हैं तो इट विल गेट अ 1 चार्ज। तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या हो जाएगा? दैट इज HCl। तो इस तरह से हम जो है किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है इस चैप्टर में दैट इज दी हाउ टू राइट दी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है किसी भी, पहले हमें सिंबल लिखना आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का, उसका फिर हमने मास निकालना है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एज ए सेड कि एटम, एटम का अपना मास होता है, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। किसी भी एटम, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 और 1 ये इसका एटम है, ये इसका एटम है। और जैसे मैंने अभी लिख दिया HCl, HCl एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसका जो ये चीज है दैट इज द एटॉमिक नंबर, जो बेस पे लिखा है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। और जो टॉप पे लिखा है वो क्या है? एटॉमिक मास। अब यहाँ पे दो एटम है और अलग अलग एलिमेंट के हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो कैसे लिखा जाएगा? 1 by 1। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और जो मास होता है दैट इज 35। तो ये दोनों के सिंबल है। इसका अगर एटम का हमने मास निकालना है तो वो तो मुझे दिख रहा है कि 1 है, जो भी मुझे एटम दिया होगा उसका मास टॉप पे लिखा होता है। अगर मुझे मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास मतलब उसके अंदर जितने भी एटम है, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे वो अलग अलग एलिमेंट के हो, सभी का मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द masses of the all atoms, सभी एटम का। तो यहाँ पे दो एटम है अलग अलग एलिमेंट के, एक का मास ये है और दूसरे का मास ये है, दोनों के एटम भी एक एक है। तो हम HCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाई विद 1, क्योंकि एक ही एटम है और उसका मास भी एक ही है, प्लस दूसरा एलिमेंट आ गया, एक ही एटम है और एक का जो मास है वो 35 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट लाइक दिस, और हम इनको प्लस कर लेंगे तो 36। आप इस तरह से यूनिट लिखेंगे MU, या फिर हम U बना के, ये इसका सिंबल है और ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर में देखेंगे, अभी हम हाइड्रोजन का सिंबल इस तरह से लिखते हैं और ऑक्सीजन का सिंबल ये है। मैंने जैसे कहा कि जो मास होता है दैट इज डबल, और आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास इतना रट्टा नहीं मारना। इफ यू विल रीड फॉर 1 वीक कंटिन्यूसली यू विल गेट इन योर माइंड। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका 16 है और इसका 1 है। अब हम इस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मीन्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए। अब हम यहाँ पे इसका जब मास निकालेंगे, इसके एटम कितने हैं? तो हम यहाँ पे एटम है इसके 2 और एक एटम का मास कितना है? 1, प्लस करेंगे, यहाँ पे इसके एटम कितने हैं? 1 और मास कितना है? 16। तो इस तरह से हम 2 +
16 एंड दैट इज 18 mu, हम इस तरह से सिंबलाइजेशन कर देंगे। तो नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमने जो लास्ट में हमने देखना है दैट इज दी फॉर्मूला यूनिट मास। ये मॉलिक्यूलर मास है एंड फॉर्मूला यूनिट मास, दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट mass and how it differ from the molecular mass। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? जिसमें जो हमारा कंपाउंड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना है वो एटम ना हो के आयंस हो। तो हम यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला यूनिट मास इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास। सेम, निकालने का तरीका सेम है। मॉलिक्यूलर मास only difference is that here or in, here तो हम in लिखेंगे, in formula unit mass, in formula unit mass the constituents जिससे बना हुआ है constituent particles are ions, not atoms, not atoms। एग्जाम्पल ले ले, दैट इज NaCl। तो इसमें Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस का। एंड इवन वी विल टेक दी MgCl2, यहाँ पे Mg के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 का। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम ना हो के आयंस हो, जब हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, हम उसे फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अगर NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना है, जो सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है 11 और दैट इज 23। इन सम हेल्पिंग बुक इट इज आल्सो रिटन 22 एंड अगर व्हाटएवर द मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास इज प्रोवाइडेड हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे NaCl दिया है, NaCl में सोडियम का एक ही एटम है और एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। हम क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास निकाल रहे हैं, मुझे उस पूरे फॉर्मूले का मास निकालना है। एटॉमिक मास तो मुझे पता है, तो दूसरा एलिमेंट आ गया, हमने यहाँ प्लस कर लेना है। और क्लोरीन का भी यहाँ एक ही एटम है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35 है। इस तरह से हमारे पास 23 आ गया और प्लस 35 आ गया एंड व्हाट वी आर गेटिंग 8 एंड 58 mu। यूनिट सेम रहेगी, यूनिट विल बी सेम, method will be same, only the molecular mass is changed with the formula unit mass। And at the end we must know how many atoms are there either in a molecule or in an atom। For example, इसमें कितने atoms हैं? 1 + 1 तो having a 2। अब इसमें कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 है, तो टोटल 3। सोडियम क्लोराइड में कितने एटम है? 1 + 1 दैट इज 3। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं वो आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 3 हो गए। NaCl में 1 और 1 2 हो गए। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्लोराइड के 2 एटम है और मैग्नीशियम का 1, तो यहाँ पर 3 एटम है। एंड हियर इफ वी हैव टू बी फाइंड आउट, अगर मोल कॉन्सेप्ट है और मोल कॉन्सेप्ट में हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? आपको जो भी गिवन मास दिया होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? n = m/m। और हमें अगर एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर होता है किसी मॉलिक्यूल के बीच में जो अगर 1 मोल है, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल है तो 1 मोल
1 मोल में कितने एटम होते हैं ये फिक्स्ड है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स। तो किसी भी मोल अगर किसी भी जो हमारा फॉर्मूला यूनिट है या फिर हमारा मॉलिक्यूल है उसके 1 मोल में ये फिक्स है कि कितने एटम्स या पार्टिकल्स या आयंस होते हैं। अगर हमें ये चीज दी हुई है और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आई जस्ट सेड कि एल से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स आपको दिए होंगे, गिवन पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, एंड दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। सो जो गिवन पार्टिकल्स होते हैं उसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगैड्रो नंबर को हम कैपिटल एन लगा के उसके बेस पे कैपिटल ए लिख देते हैं एंड इट इज इक्वल टू एन। So now we are having a new relation here, n equal to either given mass by molecular mass or given particle by Avogadro number. So अगर ये दोनों आपस में बराबर है which implies n by Na equal to m by n. So हम इन रिलेशंस को यूज करके मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ द कंपाउंड या पार्टिकल्स इन द कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं।